Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now today we are going to discuss 10 important questions of CSIR NET. Now today's topic is linear algebra. That is, we will discuss 10 important questions of linear algebra of CSIR NET and IIT JEE. Now please subscribe channel and share to all of your friends who are preparing for CSIR NET, GATE or IIT JEE. Now let's the first question. We have to find the determinant of this given matrix. So for solving this, we need two things. The one is what is Vandermonde identity, and the next is the property of determinant. Now what is the Vandermonde identity? This is special types of matrix. That is, for example, if suppose the matrix is if we take the 3 cross 3 matrix, then x square, 1 y square, 1 z square. Similarly, if the given matrix is of order n cross n, then this is 1 x square solve up to x raised to n minus 1. 1, suppose taking x1, so x1 square solve up to x1 raised to n minus 1, x2 square solve up to x2 raised to n minus 1. Similarly, xn minus 1, or xn square, xn solve up to xn raised to n minus 1. Then the determinant of this matrix, suppose this is A, then the determinant of this Vandermonde identity is take the highest, that is, for example, z, then z minus y minus x and z minus x. मीन्स क्या होता है कि हम लास्ट वाली लेंगे और लास्ट में से पहले z में से z माइनस करेंगे, z में से y माइनस करेंगे और z में से x माइनस करेंगे, यानी z माइनस y, z माइनस x, फिर सेकेंड से स्टार्ट करेंगे और सेकेंड माइनस फर्स्ट. तो इस तरीके से z माइनस y, z माइनस x एंड y माइनस x. तो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. सिमिलरली अगर यहाँ पे 4 क्रॉस 4 होता तो सपोज w माइनस z, z माइनस y, y माइनस x, और फिर इसी तरीके से और भी 3 होते यहाँ पे y माइनस z, z माइनस y, y माइनस x, y माइनस और y माइनस z, w माइनस z हो गया तो w माइनस y, w माइनस x, और लास्ट में y माइनस z माइनस x. तो ये हमारे पास ये इसका डिटर्मिनेंट हो जाता. तो बाय यूजिंग दिस we will solve the given question. Now one more result is we can separate this determinant. We know that if we have to find the determinant 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus y, 1 plus y square, 1 plus z, 1 plus z square. Now this determinant, by using the property of determinant, this matrix can be written as 1, for example, 1 plus x, and this is 1 plus x, 1 plus y, 1 plus y, 1 plus z, and 1 plus z, and this 1 plus x, 1 plus y, 1 plus z, and here x square, y square, z square. Clearly the two columns are identical, and we know that by using property of determinant, if any two row or column are identical, then determinant of this matrix is 0. Now if again the determinant of this can be written as, this can be written as 1 x square, y square, z square plus 1 x y z x square, y square, z square.
and we know that again these two column are identical, therefore the determinant of this matrix is 0. अब यहाँ पे दो कॉलम सेम है तो therefore इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा 0 होगा. ठीक इसी तरीके से ये हमारे पास वंडरमॉड आइडेंटिटी है और इसको ऑलरेडी हम चेक कर चुके कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज z माइनस वाई, z माइनस एक्स एंड y माइनस एक्स. तो मतलब इसका डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा. तो ये सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हमने प्रॉपर्टी का यूज किया. ये वी विल ओनली यूज, वी हैव यूजिंग ओनली द वंडरमॉड आइडेंटिटी एंड द सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट. मीन्स हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज की और एक हमें पता होना चाहिए था कि वंडरमॉड आइडेंटिटी क्या होता है, या फिर सिंपल हम उसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. तो देयरफॉर हमारे पास जो ऑप्शन है, तो ध्यान देना साइन में, तो क्लियरली z माइनस वाई, z माइनस एक्स एंड y माइनस एक्स ये राइट हो जाएगा. तो ये तो क्लियरली रॉन्ग हो जाएगा. अब इसमें से एडजस्ट कर सकते हैं कि साइन में हमें देखना होता है. अब ध्यान सुनो, जैसे z माइनस वाई है तो यहाँ पे ये साइन है, यानी से एक साइन माइनस आएगा. अगर सपोज कहीं और से अगर माइनस कैंसिल हो रहा है मतलब ये ऑप्शन राइट हो जाएगा. तो यहाँ पे नेक्स्ट z माइनस एक्स होना चाहिए, बट ये रिवर्स है तो माइनस माइनस प्लस. बट यहाँ पे फिर से साइन चेंज हो गया क्योंकि y माइनस एक्स यहाँ पे x माइनस वाई लिखा है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, माइनस टाइम्स आएगा. तो देयरफॉर दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग. बट अगर सपोज यहाँ पे ये y माइनस एक्स होता या फिर किसी इसमें से कोई दो को चेंज करते और एक एज इट इज होता तो भी आंसर सेम होता. नाउ द क्वेश्चन नंबर 252 इज कि सब स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस ऑफ आर क्यू. वी नो दैट कि अगर जब भी हम सब स्पेस हमें चेक करना होता है, हमारे पास अगर इस तरीके का इक्वेशन लिखा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इक्वेशन हो जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस यहाँ पे C1, तो हमेशा याद रखना है ये C1 पे डिपेंड करता है. अगर ये C1 जीरो है तो वो सब स्पेस फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं फॉर्म करेगा. ठीक है, तो इस रिजल्ट का यूज करके इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे राइट साइड में तो ये नॉन होमोजीनियस है, मतलब राइट साइड में ये कांस्टेंट टर्म इसका जीरो है, तो देयरफॉर ये सब स्पेस फॉर्म करेगा, ये भी सब स्पेस फॉर्म करेगा. बट यहाँ पे ये दोनों में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो है, तो देयरफॉर सी एंड डी ऑप्शन रॉन्ग और ए और बी राइट हो जाएगा. बाकी इसमें सिंपल रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इस सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए. तो इस रिजल्ट का यूज करके कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है V और उसका एक सब स्पेस ले लेंगे W, तो हम कब कहते हैं कि W V का सब स्पेस होगा, जब अगर यहाँ के दो वेक्टर ले लें. सपोज यहाँ का अगर हम दो वेक्टर लेते हैं, जैसे कि सपोज A एंड B, अगर ये बिलोंग कर रहा है W को, तो देन A अल्फा प्लस B बीटा भी बिलोंग करना चाहिए W को, वेयर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये स्केलर होगा. तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि फर्स्ट एंड बी ऑप्शन राइट होगा, बाकी थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे. नाउ अब क्वेश्चन नंबर 253. अब 253 के इस मैट्रिक्स को अगर हम ध्यान से देखें, वी नो दैट कि द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ पिवट इन द गिवन मैट्रिक्स. अब इस गिवन मैट्रिक्स के अंदर हम पिवट देखें तो कितने हो रहे हैं, एक तो ये पिवट है, एक तो ये पिवट है और एक तो ये पिवट है. तो यहाँ पे 3 पिवट है, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो कितना होगा, 3. एंड वी नो दैट कि रैंक मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो लेस देन मिनिमम ऑफ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3x5, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 होगा. एंड ऑल्सो वी नो दैट कि अगर एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का रैंक अगर कॉलम मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का कॉलम रैंक एंड रो रैंक आर सेम होते हैं, तो ये रिजल्ट आता है. तो देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द कॉलम ऑफ ए आर लीनियरली डिपेंडेंट. सॉरी, यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द कॉलम ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. बट वी नो दैट द नंबर ऑफ कॉलम कितने यहाँ पे 5 है, एंड वी नो दैट कि द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3, क्योंकि नंबर ऑफ पिवट आर 3, तो देयरफॉर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3. एंड वी नो दैट द रैंक ऑफ रो रैंक एंड कॉलम रैंक आर सेम,
तो अगर मैट्रिक्स का रैंक 3 है तो देयरफॉर कॉलम की जो मैट्रिक्स होगी, जो कॉलम वेक्टर है वो भी क्या होंगे, तो उसकी भी रैंक 3 होगी। मीन्स कॉलम में 3 ही ऐसे वेक्टर्स होंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। बट हमारे पास टोटल वेक्टर्स कितने हैं, 5। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऐसी ए और बी की वैल्यू एग्जिस्ट होगी, देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ एन बी फॉर विच द कॉलम्स अपीयर लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट सिंस एन इज इक्वल टू 5 एंड रैंक इज 3, तो देयरफॉर द कॉलम वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। बट यहाँ पे कह रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो देयरफॉर ऑप्शन इज रॉन्ग। Now the second is कि there exists a value of a and b for which the ax is equal to 0 has a x is equal to 0 as the only solution. अब ax is equal to 0, it is homogeneous equation, and we know that कि suppose ax is equal to 0, this is homogeneous, clearly this is homogeneous system of linear equation. Now there are two cases. Case one is unique solution or infinitely many solution. But for unique solution, the rank of A must be number of column. But here n is equal to 5 and rank of A is equal to 3, which is less than 5. So therefore the unique solution is not possible. Therefore the only option is infinitely many solution. And the infinite many solution means the non-trivial solution. मीन्स ये कह रहा है कि अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे या तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब यहाँ पे मैट्रिक्स, अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है जी कि जो ए की रैंक है वो कॉलम वेक्टर्स के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स। बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो तो 5 है और मैट्रिक्स की रैंक कितनी है 3, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ये यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि ट्रिवियल यानी कि जीरो सॉल्यूशन होगा। अगर हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए तो, बट यहाँ पे ये केस तो पॉसिबल नहीं, यानी कि उसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे। या फिर हम रैंक नलिटी थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। तो रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करके हम सॉल्यूशन स्पेस भी निकाल सकते हैं। एंड वी नो दैट कि द सॉल्यूशन स्पेस कैसे निकालते हैं। अगर सपोज हमें डायमेंशन निकालना है सॉल्यूशन स्पेस का, दैट इज नलिटी, तो बाय यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम दिस इज कॉलम वेक्टर माइनस रैंक ऑफ ए, तो देयरफॉर 5 - 3 इज इक्वल टू 2। अब डायमेंशन 2 है तो मीन देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि कर्नल स्पेस के अंदर नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे। तो बाय यूजिंग दिस द ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ऑप्शन नंबर सेकेंड तो ये कह रहा है, द ऑप्शन नंबर सेकेंड द ऑप्शन नंबर सेकेंड इज कि देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ ए बी फॉर विच ए एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एक्स इज इक्वल टू 0 एज द ओनली सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू 0 ये सिर्फ ओनली सॉल्यूशन होगा, बट ऐसा नहीं है। देयर एग्जिस्ट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देयरफॉर ऑप्शन बी इज रॉन्ग। नाउ फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी द रो ऑफ ए स्पैन 3 डायमेंशन सब स्पेस ऑफ R/5। तो क्लियरली ए एंड बी के हर एक वैल्यू के लिए जो रो होगी ए वो स्पैन करेगी एक 3 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ R/5। तो R/5 के 3 डायमेंशनल सब स्पेस को स्पैन करेगा, तो ये तो ऑप्शन क्लियरली सी इज रॉन्ग होगा, क्योंकि उसकी रैंक कितनी है 3। नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच रैंक इज इक्वल टू 2, बट विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट डिपेंड ऑन ए एंड बी, विच इज ऑलवेज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज 3, which doesn't depends on A and B, so therefore D option is wrong. The only C option is correct because A, B and D option are wrong. Now the question number 254. Let A M be a M cross N matrix of real number, be a set of all M cross N matrix
तो which of the following statement are correct? Now rank nullity theorem is a very important theorem. I repeat in every lecture, the eigenvalue, eigenvector and rank nullity theorem in every exam, it may be June or December, in every year there are 2 or 3 questions directly or indirectly which is related to rank nullity theorem. Now the question number 254 is कि there exists a matrix of order M2 cross phi such that the dimension of null space of A is 2. Now we know that the simple result, that is, we know that कि if the matrix of order M cross n, यानी कि एक मैट्रिक्स है M cross n ऑर्डर की, then rank of A is always less than the minimum of Mn. So therefore here the rank of matrix is always less than the minimum of 2 and 5. So therefore the rank of matrix is always less than 2. And by using rank nullity theorem, this is M minus rank of 2. So therefore, since rank of A is always less than 2 and here minus sign, so therefore this is always greater than 3. So therefore the nullity of A is always greater than 3. So this is first one, कि rank of A is always less than 2, and by using rank nullity theorem we get the nullity of matrix is always greater than 3. By using these two results we solve the question. मीन्स हमारे पास दो चीजें मिली, एक तो मैट्रिक्स की जो रैंक है वो लेस देन 2 होगी और दूसरा जो नलिटी है मैट्रिक्स का वो हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 होगा. अब चेक करते हैं ऑप्शन. ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 5 सच दैट द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज 2, बट विच इज नॉट पॉसिबल सिंस द नल स्पेस की जो डायमेंशन होगी हमेशा ग्रेटर देन 3 होगी. द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3, देयरफॉर ऑप्शन ए इज रॉन्ग. Similarly, there exists A belongs to M2 cross phi such that the dimension of null space of A is 3, 0, so which is clearly wrong. Using same result, so therefore option A is wrong, option B is wrong. Since क्योंकि जो डायमेंशन स्पेस होगी, सॉल्यूशन स्पेस की जो डायमेंशन होगी हमेशा ग्रेटर देन 3 होगी, बट इन फर्स्ट ऑप्शन A is 2, the dimension of null space is 2, the dimension of null space 0, which is not possible. So therefore option A and B are wrong. Now similarly, we can disprove there exists a matrix whose null space is this. So clearly, in place of xn we can return as x2, and in place of x3, x4 are same. So therefore we can return x3 and x5. So there are only 2 free variable, so therefore the dimension of null space is 2. So clearly which is not possible because the dimension of null space is greater than 3. So therefore option C is correct. Now here they ask for कि there exists a matrix of order 2 cross 5 and matrix of order 5 cross 2 such that कि AB is the 2 cross 2 identity matrix. So we can check there exists a matrix. So for example 2 cross 5 and 5 cross 2 such that this is suppose A matrix and this is suppose B matrix, such that the 2 cross 5 we will get the matrix of identity 1 cross. Okay. Now if we take 1 0 0 1 and here 1 for 0 0 and it is 1 and all integer 0 0 0 0 0 0 0. If we solve we get the 1 0 0 1 which is
identity matrix of 2 cross 2. That means there exists a matrix A and B of order 2 cross 5 and 5 cross 2 such that their product that is A into B is identity matrix. Means हमारे पास ऐसी दो मैट्रिक्स एग्जिस्ट हो रही है कि 2 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 2 की कि उनको मल्टीप्लाई करने पे आपस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है. तो देयरफॉर by using this example we can say that कि the option number 2 is correct. Option number C is correct and option A, B, D are wrong. Now the next question is, which is very simple, related to linear transformation. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और सब स्पेस के लिए एक सिंपल सा कंडीशन याद रखना होता है कि ये हमेशा क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए. तो दे क्लियरली एक्स एंड वाई रियल, बट कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए. बट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, देयरफॉर इट इज नॉट. क्लियरली यहाँ पे प्रोडक्ट में आ रहा है तो लीनियर नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज अगेन रॉन्ग. अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, दोनों आपस में लीनियर भी है, तो क्लियरली सी इज राइट. तो देयरफॉर only F wrong, only G wrong, only H, तो clearly H is right and option A, B, D are wrong. We can prove that, we know that the definition of linear transformation कि अगर सपोज R क्यूब से लेके कोई एक R क्यूब तक है, इसे लीनियर तो इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे, जब हम तो फॉर एग्जाम्पल वेन वी से दैट दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज अल्फा ए प्लस बीटा बी कैन बी रिटन एज अल्फा इंटू टी ऑफ ए प्लस बीटा इंटू टी ऑफ बी. दिस इज डेफिनेशन. तो यू कैन चेक बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन द ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर रॉन्ग एंड ऑप्शन सी आर डी. तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन का यूज करके भी हम कर सकते हैं, बट याद रखना है कि हमेशा वो लीनियर होना चाहिए, पहली प्रायोरिटी है. उसमें कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी है. और थर्ड कोई भी ऐसा इस टाइप का एक्स वाई स्क्वायर ये ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर इस टाइप के कुछ भी इसमें इक्वेशन आ रहे हैं क्लियरली वो लीनियर तो नहीं हो सकता, तो देयरफॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा. बाकी तो होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि वो जो भी ऑपरेशन होगा उसको प्रिजर्व करेगा. Now again the next question which is related to rank nullity theorem. फिर से एक रैंक नलिटी थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R/n से लेके R/n तक. Then which of the following statement imply कि T is bijective. मीन्स हमारे पास 4 कंडीशन है और हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ये इंप्लाई करता है कि T is bijective होगा. Now what is the bijective meaning? T is bijective, that means T is a 1 and onto, and we know that in a linear transformation T is 1 if and only if the kernel of T is a 0 vector and T is onto if and only if the dimension of image T, that is rank of, is n. So this is the definition of bijective function, that is 1 and onto. In linear transformation T is 1 if kernel T is 0 vector and the T is onto if dimension of image T is n, or we say that कि the image T is whole R/n. तो ये डेफिनेशन. तो अब यहाँ पे इस डेफिनेशन का यूज करके और रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करके हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे. द फर्स्ट ऑप्शन इज नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू एन, बट विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि नलिटी कितना होना चाहिए, 0 वेक्टर, यानी कि उसकी डायमेंशन 1 होनी चाहिए. तो क्लियरली ए ऑप्शन रॉन्ग. सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि द रैंक ऑफ टी और नलिटी ऑफ टी एन के इक्वल होनी चाहिए, तो क्लियरली ये ऑप्शन भी रॉन्ग. नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू एन. अब ये रैंक नलिटी थ्योरम तो हमेशा अप्लाई होता है, इट डजंट इंप्लाई करता है कि टी इज बाइजेक्टिव होगी, तो देयरफॉर ये रॉन्ग. नाउ द नेक्स्ट इज रैंक ऑफ टी इज इक्वल माइनस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू एन. तो क्या ये इंप्लाई करती है कि टी इज बाइजेक्टिव होगी? तो अगर ये प्रूव करना है तो प्रूव कर सकते हैं कि अगर सपोज इफ रैंक ऑफ टी एंड नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू एन, अगर ये सपोज गिवन है, तो देन वी नो दैट बाय रैंक नलिटी थ्योरम कि द रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू एन. इफ यू एड टू दिस द नलिटी ऑफ टी कैंसल, so therefore 2 into t of t is equal to 2n.
तो देयरफॉर 2 कैंसल, तो देयरफॉर रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू n। तो क्लियरली ये सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी n। और फॉर नलिटी इफ यू पुट, हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है n, तो देयरफॉर अगर इसके प्लेस पे n पुट कर देंगे तो नलिटी ऑफ t अगर ये राइट साइड में गया तो ये n माइनस n कितना हो जाएगा 0। तो देयरफॉर नलिटी ऑफ t की जो डायमेंशन है वो 0, सॉरी वहां पे मैं नलिटी ऑफ t के प्लेस पे 0 वेक्टर लिखा था, तो नल स्पेस एक 0 वेक्टर होगा और उसकी जो डायमेंशन होगी वो 0 होगी, सही। तो वहां पे करेक्शन कर देना। तो देयरफॉर नलिटी ऑफ t यानी कि जो डायमेंशन होगी कर्नल स्पेस की वो कितनी होगी 0 होगी। तो देयरफॉर द ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड ई बी सी आर रॉन्ग। अब नेक्स्ट ऑप्शन इज डायगोनलाइजेबल। तो डायगोनलाइजेबल काफी सिंपल होता है, काफी रिजल्ट है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि काफी रिजल्ट है डायगोनलाइजेबल चेक करने की। डायगोनलाइजेबल का एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ये होता है कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स नॉन जीरो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सच दैट कि A can be written as P inverse AP where P is a invertible matrix। यानी कि A को हम डायगोनलाइजेबल तब कहेंगे जब उसमें एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट होगी, जब उसमें एक नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट होगी P सच दैट कि मैं A को इस तरीके से लिख सकता हूं और ये जो मैट्रिक्स आएगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। और जो उसके डायगोनल एंट्री होगी वो किसकी इक्विवेलेंट होगी A, और डायगोनल एंट्री पे हम उसके आइगन वैल्यू को लिखते हैं। तो ये तो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, बट हम प्रूफ कभी एग्जैक्ट डेफिनेशन का यूज करके नहीं करते, हमेशा बहुत सारे उसके डायगोनलाइजेबल काफी रिजल्ट है। तो हम इसमें जो रिजल्ट यूज करेंगे कि अब मैट्रिक्स इफ, पहले रिजल्ट तो ये कि इफ एवरी आइगन वैल्यू आर डिस्टिंक्ट, इफ every eigenvalue are distinct, then A must be diagonalizable. And we know that if matrix is upper triangular, then the diagonal of matrix is only diagonal element. So therefore 1, 2, 3 is the diagonal element. All are distinct, so therefore B option is correct, that is diagonalizable. Here the option A, 1, 2, 3 all eigenvalue are distinct, so therefore B and D are correct. Now here two eigenvalue are same, that is algebraic multiplicity of eigenvalue 1 is 2. Now for we have to prove the geometric multiplicity of 1 is again 2. Then we say that कि the given matrix is diagonalizable. Now अब हमें diagonalizable के लिए एक तो ये रिजल्ट है कि हम उसके algebraic multiplicity को प्रूव कर दे उसके geometric multiplicity के इक्वल होगा। तो यहां पे सपोज फॉर एग्जांपल लैम्बडा इज इक्वल टू 1 है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 एंड वी हैव टू फाइंड द नल स्पेस के डायमेंशन। तो हमें फाइंड करना है टी माइनस लैम्बडा क्या है 1, यानी कि इसकी डायमेंशन फाइंड करनी। अगर इसकी डायमेंशन भी 2 हो गई, यानी कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है टी माइनस लैम्बडा आई, बट लैम्बडा की वैल्यू 1 है, तो दैट इज टी माइनस आई। जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो नल स्पेस के डायमेंशन के इक्वल होती है। तो हमें ये प्रूव करना है एंड वी नो दैट कि अगर हमें नल स्पेस फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स का नल स्पेस फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, द नलिटी ऑफ टी माइनस आई इज इक्वल टू कॉलम वेक्टर, बट यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है तो कॉलम वेक्टर कितने होंगे, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस द रैंक ऑफ टी माइनस आइडेंटिटी। तो देयरफॉर 3 माइनस, अगर हमें रैंक निकालना है टी माइनस आई की, तो हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो गिवन है 1 1 0 0 2 0 एंड 0 0 1, ये गिवन है, ठीक है। अब इसमें से जब आइडेंटिटी माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, तो 0 0 0, यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 1 माइनस 0 यानी कि 1, तो यहाँ पे डायगोनल पे तो ये भी कितना हो जाएगा 0। तो क्लियरली अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो यानी कि जो रैंक आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1। तो देयरफॉर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2।
तो क्लियरली हमें यहाँ पता चल रहा है कि जो नल स्पेस के डायमेंशन है वो 2, यानी कि जो 2 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी होगी 2। सिंस द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आर सेम, तो therefore there are two linearly independent eigen vector corresponding to eigen value lambda is equal to 1, यानी कि जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 की इक्वल है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1, दैट इज देयर आर 2 आइगन वेक्टर। तो क्योंकि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है 1 की, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है, तो therefore there are two linearly independent eigen vectors, and we know that कि a matrix is said to be diagonalizable if there are n linearly independent eigen vector। तो क्लियरली एक तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, एक वेक्टर तो हमेशा आइगन लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, एंड क्लियरली दिस 2 इज आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो देयर आर 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, देयरफॉर द ए इज अ डायगोनलाइजेबल, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है, यानी कि ये भी डायगोनलाइजेबल है। बट क्वेश्चन में हमें डायगोनलाइजेबल नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि नॉट डायगोनलाइजेबल है, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी डी ऑप्शन रॉन्ग होगा, तो ओनली ऑप्शन सी इज राइट। तो बाय यूजिंग सेम प्रोसेस यू कैन चेक द ऑप्शन नंबर सी इज नॉट डायगोनलाइजेबल, बिकॉज इफ we will get the geometric multiplicity of 1 is not 2, that is 1, यानी कि जो सॉल्यूशन स्पेस की जो डायमेंशन होगी यहाँ पे हमें 1 मिलेगी। अब 1 कब मिलेगा, यानी कि मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पे 2 होगी, यानी कि जब हम ए में से आइडेंटिटी को मैट्रिक्स में से माइनस करेंगे तो उस मैट्रिक्स की रैंक 2 होगी, तो देयरफॉर 3 - 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि सॉल्यूशन स्पेस की रैंक 1 आएगी। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो जाएगा कि नॉट डायगोनलाइजेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 258 which is very simple related to nilpotent matrix. Let A be a 2 cross 2 non-zero matrix with entry in C such that A square is equal to 0. Now clearly this is nilpotent matrix and we know that there are so many results related to nilpotent matrix. A square is equal to 0 and the matrix of order 2 cross 2. एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 गिवन है, दैट मीन्स द गिवन मैट्रिक्स इज नीलपोटेंट, एंड पहले ही गिवन है नीलपोटेंट भी है, बट कैसा नीलपोटेंट है, नॉन जीरो, एंड वी नो दैट कि एवरी नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। फर्स्ट रिजल्ट इज every non-zero nilpotent matrix is never be diagonalizable. Second, all eigenvalue are 0. All eigenvalue are 0. There does not exist a P inverse such that कि A can be written as P inverse AP. Why? Since A is not diagonalizable, so therefore there does not exist any non-invertible मैट्रिक्स सच दैट कि ए कैन बी रिटर्न एज दिस। सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, इसका मतलब ये डायगोनलाइजेबल है, बट विच इज नॉट पॉसिबल। बाय यूजिंग दिस रिजल्ट वी कैन चेक द ऑप्शन। तो ऑप्शन को हम लोग चेक कर सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। यहाँ पे इसका ऑप्शन पीछे है ना, कि दे कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स विथ एंट्री इन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P सच दैट कि P इनवर्स AP इज P इनवर्स इज डायगोनल। मीन्स ये मैट्रिक्स के बारे में कह रहा है कि वो डायगोनलाइजेबल होगा, तो बट विच इज नॉट पॉसिबल। नीलपोटेंट मैट्रिक्स नेवर बी, नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं, नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज नेवर डायगोनलाइजेबल, सिंस जीरो मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, ये याद रखना। A has a two distinct eigenvalue? No. Since nilpotent matrix, every eigenvalue must be 0. So therefore B option is not correct. Third option is A has only one eigenvalue. Correct. सिर्फ एक ही eigenvalue है, that is 0 with multiplicity 2. हाँ, तो उसकी algebraic multiplicity 2 होती है, तो ये option right है। Last option is कि there exists a non-zero vector such that कि AV can be written as V.
तो वी कैन रिटर्न एज दिस इज 1 into v and this is the definition of eigenvalue. That means 1 is the eigenvalue. When we say that ki lambda is eigenvalue, if there exists a non-zero vector v such that we can return as av is equal to lambda into v. That means 1 is an eigenvalue, which is not possible because A is a nilpotent matrix and we know that ki the eigenvalue of nilpotent matrix must be 0. So therefore option D is wrong. The only option C is correct. Remaining options are wrong. Now the next question is question number. Now the next question is, let V be a vector space of all 6 cross 6 real matrix over the filled R. मीन्स V हमारे पास एक 6 क्रॉस 6 रियल मैट्रिक्स है. डायमेंशन पूछ रहा है सब स्पेस ऑफ V कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्राइसेस. अब सिमेट्रिक मैट्राइसेस का सिंपल फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2. किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन ये होती है. तो यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो 6 ये कैंसिल होके 3 और 6 1 प्लस 1 7 7 3 21. द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 266 इज वेरी सिंपल कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इज गिवन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन. नॉट क्वेश्चन नंबर 259 एंड 260. तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ये IIT जैम के क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 259 तो काफी सिंपल है. यहाँ पे सिर्फ रिलेशंस का यूज करना है और ये बताना है कि 1 ऑन 2 बट नॉट ऑन 2. मीन्स इन्वर्टिबल के बारे में पूछ रहे हैं. मीन्स क्लियरली हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे कुछ तो सॉल्व करके. तो जो गिवन है वो ये गिवन है कि द टी क्यूब इज प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ये पहला रिलेशन है. तो समझते हैं पहला रिलेशन तो हमारे पास ये थोड़ा अच्छा कि जो पहला रिलेशन है द फर्स्ट रिलेशन इज कि द टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आइडेंटिटी. तो एक तो पहला रिलेशन है. और सेकेंड रिलेशन ये है कि हमारे पास s डिफाइन किया है इस तरीके से कि s इज इक्वल टू t⁴ प्लस 3t³ माइनस 4 आइडेंटिटी. दिस इज गिवन. बाय यूजिंग दिस टू रिलेशन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द s कि s इज इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स और एनी अदर वे. नाउ वी नो दैट since t cube plus 3t square is equal to 4 identity, if we taking t common, we will get t cube plus 3t square minus 4i, but which is nothing but 4i. So therefore this is 4i minus 4i. So therefore this can be written as t minus I and 4. तो इस तरीके से लिख सकते हैं. तो सपोज मैं इसे स्टार दे देता हूं और यहां पे याद रखना है कि s कैन बी रिटर्न एज t माइनस आई इंटू 4. तो देयर फोर द डिटर्मिनेंट ऑफ s इज t माइनस आई और दैट इज 4. मीन्स इस तरीके से हमें डिटर्मिनेंट निकालना है. ठीक है. तो अब इसका यूज करना. अब ये रिलेशन का यूज करके हमें कुछ मिलेगा यहाँ पे. तो ये याद रखना है कि हमारे पास t माइनस आई है. Now we have a 3 cube plus 3t square 4i. मीन्स ये एनिहिलेट कर रहा है पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 4i. तो क्लियरली 1 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को. देयरफॉर 1 इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो देयरफॉर ये तो सेटिस्फाई करेगा t माइनस 1 लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मीन्स 0. अब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है मीन्स इसकी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट कितनी होगी 0. बट हमने s को कैसे लिखा था? s को हमने इसी तरीके से लिखा था. यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा बट उससे लेना देना नहीं. तो ये डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 0. तो देयरफॉर s की डिटरमिनेंट कितनी हो जाएगी 0. एंड वी नो दैट कि अगर s का डिटरमिनेंट 0 है मतलब मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी इन्वर्टिबल. तो देयरफॉर the option number 4 is correct and all other option are wrong. So that means the option D is correct, that is
T is a non-invertible matrix. S is a non-invertible matrix and remaining option are A, B, C option are wrong. Only option D are correct. Now this is our lecture number 26 of 60 days challenge. तो हमेशा की तरह ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें. अगर जितना से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा उन्हें नए नए क्वेश्चंस के टेक्निक पता चल सके कि किसी भी क्वेश्चंस को किस तरीके से टेक्निक का यूज करके हम सॉल्व करते हैं. तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.